I can guarantee you that you will fail. If I hand a lucrative running business to your hands right now, you will crash it. आप अपनी लस्ट को जब तक कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक आप जिंदगी में कुछ भी नहीं पढ़ने वाले. What if I recorded that video and showed it to your mother, showed it to your father? What would they say? Someone is telling you कि भाई e-commerce start कर लो. Someone is telling you कि भाई trading start कर लो. Someone is telling you कि Airbnb सब leasing कर लो. कोई आपको कह रहा है आगे कि AI based drop shipping is the way to go. But amongst all of this noise, you have to understand कि ये सारे business models जब तुम अपने आप से सवाल पूछते हो ना कि which of these work, मैं कौन सा स्टार्ट करूं? Is copywriting worth it in 2025? Copywriting is a very high paying skill. Copywriting still to this day लोगों को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. आप अपनी मेडिकल जर्नी आगे परस्यू कर रहे हैं या नहीं? तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ही चाहिए था और मेडिसिन ने आपको वो प्रॉमिस किया हुआ था और मेडिसिन ब्रोक दैट प्रॉमिस, व्हाई नॉट गो एंड फाइंड दैट फाइनेंशियल फ्रीडम समवेयर एल्स? तो आपने 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है, पीछे आपको नौकरी कितने की लग रही है? 65,000. ये मुंह पे चंड नहीं है. Jigar, this is one of the live coaching calls from inside of my paid private community Karma. If you're watching this video before 10th of June, तो consider yourself very lucky. We're adding more masterclasses into the community and we'll be increasing the price when we do. If you want to lock your price at $5 per month, तो click the link in the top of the description to join. अगर join नहीं करना चाहते, तो no problem. This call is from my paid community, so enjoy this gift from me to you. Enjoy the call. अच्छा, तो first of all, to start, I'm just going to ask all of you guys to join on your videos so that मुझे नजर आए कि मैं रियल लोगों से बात कर रहा हूँ and I'm not just speaking to myself. And please be respectful in the call because there might be some females in the calls as well because Karma के अंदर काफी females भी हैं. तो please be respectful and keep your mics muted. End पे जो है वो जब मैं थोड़ा सा आपको brief कर दूंगा about the community, I'm going to be taking some hot seats. What the hot seat pattern is something which we've adopted from our Kafla calls. काफला में जब हम कॉल करते हैं तो वी मोस्टली जो भी कोचेस कॉल को एड्रेस कर रहे होते हैं वो पहले हो सकता है आधे घंटे के लिए जो है वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो और फिर उसके बाद वो 3 हॉट सीट्स करते हैं. दिस इज अ पैटर्न व्हिच वी अडॉप्टेड एंड जो माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा है. इससे फायदा ये होता है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू नो मेकिंग देम क्विक कि यार बस जल्दी से क्वेश्चन पूछो और फिर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, व्हाट वी डू इंस्टेड इज कि वी डू 3 क्वेश्चंस ओनली. But those 3 questions are in depth so that it is a little bit like a one-on-one coaching experience. So this is going to be the pattern with Karma Live Arena as well. So मैं सबसे पहले start करता हूँ about what this community is about. This community is essentially right now because you're one of the first few members inside of Karma. So this community right now is about confidence and communication skills. और इसके इर्द-गिर्द essentially 2 massive resources हैं. एक फुल कॉन्फिडेंस वॉल्ट है और उसके अलावा पीडीएफ रिसोर्सेज हैं. ये जो फुल कॉन्फिडेंस वॉल्ट है इसको कंज्यूम करने का तरीका ऐसे है कि आपने सबसे पहले जो है वो जो पूरी मास्टर क्लास रिकॉर्ड हुई है बाय द नेम ऑफ अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस, उस पूरी मास्टर क्लास को आपने कंज्यूम करना है. बट ओनली कंजम्पशन डजंट यील्ड एनी रिजल्ट्स. You could watch the best videos in the world, you could watch the best courses in the world, you could watch all the self-improvement videos online, but it is going to give you 0 results unless you actively implement on it. Active implementation के लिए ही exactly वो PDF resources बनाई गई हैं. उन सारी PDF resources के अंदर actionable steps हैं. जो सारी PDF resources हैं उसके अंदर आपको plugin के openers मिलेंगे जो आप social situations में लोगों के सामने इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको generally life के अंदर जो भी facet है जिसके अंदर आपको communication और active लिसनिंग या फिर एक्टिव कम्युनिकेटिंग की रिक्वायरमेंट है, उन सब सिचुएशंस के लिए आपको प्लग एंड प्ले ओपनर्स मिलेंगे, आपको एसओपीज मिलेंगे और आपको वो रिसोर्सेज जो है वो एसेंशियली एक्शनेबिलिटी के लिए हैं. तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कंज्यूम द फुल कॉन्फिडेंस मास्टर क्लास एंड देन आप उन गाइड्स के थ्रू जाएं और उनके ऊपर एक्शन करें एंड देन पोस्ट दैट एक्शन इनसाइड ऑफ द कम्युनिटी. दैट इज हाउ अ कम्युनिटी एक्सपीरियंस वर्क्स. ठीक है, हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी क्योंकि कम्युनिटीज का रुझान बहुत ज्यादा नहीं आया तो इस वजह से बहुत से लोगों को अभी इस वक्त अंदाजा नहीं है कि किस तरह कम्युनिटी मॉडल वर्क करता है. बट दिस इज हाउ इट एसेंशियली वर्क्स. इट इज नॉट ओनली अ कोर्स. ठीक है, आपको एक कोर्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि इट इज अ वन टाइम पेमेंट. उस वन टाइम पेमेंट में जो है जो वीडियोस रिकॉर्ड हुई हैं वो बस आपको मिल गई. उसके बाद देयर इज नो फॉलो अप्स, देयर इज नो कम्युनिटी सेक्शन. दैट इज ऑल यू गेट. बट इन अ कम्युनिटी यू गेट ऑल इन वन. इसके अंदर जो है मास्टर क्लासेस भी होती हैं, इसके अंदर कम्युनिटी सेक्शन भी होता है और इसके अंदर लाइव कॉल्स भी होती हैं. तो इसको आपने इसी तरीके से लेवरेज करना है कि आपने कॉन्फिडेंस मास्टर क्लास कंज्यूम करनी है,
देन आपने कॉन्फिडेंस से रिलेटेड पीडीएफ रिसोर्सेज के ऊपर एक्ट करना है, और उसके ऊपर एक्ट करके फिर आपने कम्युनिटी सेक्शन के अंदर पोस्ट करना है। जो भी लड़का कोई एडवाइस अगर मांग रहा है तो उस लड़के को एडवाइस दें। आपको किसी एडवाइस की जरूरत है तो आप पोस्ट करें कम्युनिटी के अंदर। माशाल्लाह बहुत एक्टिव कम्युनिटी है हमारी। तो ये बात होगी आउट ऑफ द वे। अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज टू बी स्टिल एडेड इनसाइड ऑफ कारमा। बिकॉज यू गाइज ज्वाइंड अर्ली एंड लॉक योर प्राइस एट $5 पर मंथ, हम लोग इसके अंदर जो है वो अभी फर्दर रिसोर्सेज ऐड कर रहे हैं। इट इज इन द वर्क्स एज वी स्पीक। अभी हम लोगों ने काफला के अंदर कुछ रिसोर्सेज ऐड किए हैं, जिस तरह वी रिसेंटली साइंड कोच वी रिसेंटली साइंड अ कोच हमाद खान, and he is basically the CEO of Possible, POSYBL. Possible के वो CEO हैं, and he is माशाल्लाह earning very very good using AI automations. वो exclusively US clients के साथ काम करते हैं, and he basically started off as a freelancer back in 2018, and now he has Possible Private Limited, which is his own company, जिसके अंदर वो basically AI automations करते हैं, and उनकी एक पूरी agency है. He has generated more than actually $1.5 million के सिर्फ उनके फाइवर और अपवर्क के ऊपर वर्क है। $1.5 million he's only earned through Fiverr and Upwork. आप सोच सकते हैं। एंड उसके अलावा उनकी एजेंसी अलग है। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा अपना सारा सिस्टम बनाया, एंड ही इज नाउ अ पार्ट ऑफ काफला, जिसके अंदर वो एआई ऑटोमेशंस का मास्टर क्लास भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी अप ऑन काफला विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स इंशाल्लाह। इसके अलावा इन काफला वी हैव एडेड अ कॉपीराइटिंग कोच शहजाद खान। आप लोगों को पता होगा शहजाद खान भाई, हु इज अ वेरी ग्रेट पर्सन एंड अ वेरी डियर ब्रदर ऑफ माइन। ही इज गोइंग टू बी आल्सो अ कोच इनसाइड ऑफ काफला, एंड उन सब के जो भी सेशंस, लाइव सेशंस हो रहे होंगे, उनकी एक्सेस आप लोगों को भी कारवां के मेंबर्स को भी मिलेगी, जो लेवल 4 के ऊपर रीच कर जाएंगे। लेवल 4 के ऊपर रीच करने का तरीका क्या है? आप एक्टिवली कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करें। आप सोच सकते हैं जो लोग $39 पे कर रहे हैं, वो चीज आपको $5 पे मिल रही है अगर आप एक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिटी के अंदर, कारवां के अंदर। आपको वो लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। यस, यू वोंट बी एबल टू एक्सेस लाइव सेशंस एज इन आप उस लाइव सेशन के ऊपर आए और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछें। दैट इज समथिंग व्हिच इज ओनली एक्सेसिबल टू काफला, बिकॉज दैट वुड बी रॉन्ग विद द काफला मेंबर्स अगर मैं आप लोगों को भी उसकी भी एक्सेस दूं। ये कुछ चीजें होंगी कि किस तरह ये कम्युनिटी काम करती है। What is to be added? There are going to be further mini master classes, whole master classes going to be added into this community. And जैसे जैसे हम लोग मास्टर क्लासेस ऐड करेंगे, जैसे मैंने काफला में भी की, काफला में भी जब ऐड करता था, तो obviously there is a lot of money that goes out of my pocket in order to onboard such high level coaches. अब मैं उन्हें ये तो नहीं ना बोलता कि भाई मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं भाई मेरा कंटेंट देखें, मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, आप जो है वो आके मेरे लिए मास्टर क्लासेस रिकॉर्ड कर लें। There is a certain amount of money, time, investment that goes out of my pocket in order to onboard these coaches. तो इस वजह से हम लोग जब कारमा के अंदर भी इसी तरह और मास्टर क्लासेस ऐड करेंगे तो वी आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ कारमा एज वेल। बट you guys who have joined right now are at $5 per month, and your price is going to be locked at $5 per month. आप लोगों की प्राइस चेंज नहीं करेगी unless you leave the community and then join again later after the price has been increased. अच्छा, उसके अलावा आ गया कि हम लोग कौन सी रिसोर्सेज ऐड कर रहे हैं। हम लोगों ने इस वक्त जो प्लान आउट की हुई हैं, वी आर प्लानिंग मास्टर क्लासेस ऑन मेंटल फोर्टिट्यूड, digital discipline, rewiring your mind from self-doubt to ruthless self-belief, how to build a routine which you can actually stick to, the dopamine detox protocol, acing like a topper, smart study techniques that actually work, elite students exam strategy, writing like a scholar, and presenting like a pro, and how to actually do public speaking and presentations in university, because I know a lot of you guys struggle with that. इसके अलावा English fluency, which is such a big problem for a lot of guys कि वो effectively English के अंदर communicate नहीं कर सकते हैं. And in today's day and age when English speaking is so important that and of so much paramount importance, especially communicating with people when you're doing international work. Yesterday I was on a call in a meeting with China. मतलब चाइना में एक हमारे clients थे, उनके साथ हम converse कर रहे थे, एक meeting कर रहे थे.
एंड उसके अंदर मेरे कुछ पार्टनर्स भी मौजूद थे एंड वो इफेक्टिवली इतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे एंड इस वजह से वो ट्रस्ट लेवल नहीं बिल्ड हो रहा था उनका हमारे साथ. But Alhamdulillah, I've worked on my English quite a lot, and I was someone who couldn't even join two words together. I'll be completely honest with you. I wasn't English isn't my first language. मैंने सिर्फ जो है वो अपने स्कूल के टाइम में एक्सपोजर के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कदरन बेहतर की. और आप भी जो है वो बेहतर कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू बी मेकिंग अ होल मास्टर क्लास अराउंड इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल. तो ये हम लोग माइंडसेट, डिसिप्लिन, इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, इन चीजों के ऊपर हम लोग मास्टर क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे होंगे और उसके अंदर ऐड कर रहे होंगे. भाई प्लीज एक कोर्स हाउ टू स्टॉप पोर्न एडिक्शन पे भी बनाइएगा. ये फिर आप ही कुछ बता दें यार. देखो, आई विल हैप्पीली मेक अ कोर्स ऑन दिस, बट देखो, आपकी योर हैंड्स आर controlled by your brain. Try to understand what I'm saying. Your hands, they're controlled by your brain. तो आपके दिमाग में इतनी कुव्वत नहीं है कि आप अपने आप को रोक नहीं सकते. आप अपनी लस्ट को जब तक कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक आप जिंदगी में कुछ भी नहीं पटने वाले. ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है. अगर आप अपनी लस्ट से इतने सिवियर किस्म की कंट्रोल हो ना, तो फिर फर्दर डाउन इन लाइफ आप अगर कोई 2-4 पैसे कमा भी लोगे ना, तो यूर गोइंग टू बी द मोस्ट इजीली यूजेबल पर्सन इन द वर्ल्ड. आपको इतना आसानी से यूज किया जा सकेगा ना, बिकॉज हर किसी को पता होगा कि ये बंदा, इसको अगर पकड़ना है ना, इसकी अगर टांग खींचनी है तो इसको लास्ट फीड कर दो. तो जब लोगों को आपके बारे में ये पता होगा और आपकी ये परसेप्शन होगी, तो फिर आप क्या कर सकते हो दुनिया में. आप किसी जगह ऊपर पहुंच भी जाओगे लेकिन आप लड़खड़ा जाओगे, आपको कोई बंदा अड़ंगी दे देगा बड़ी गंदी किस्म की. एक तो ये बात हो गई. दूसरी बात ये है कि आपको अपने पेरेंट्स को कोई फख्र नहीं है. आपको अपने पेरेंट्स का कोई ख्याल नहीं है. 2 माँ बाप ने आपको बड़ा किया, उन्होंने, जिन्होंने आपको एक शख्स के तौर पे बड़ा किया है. समवन के मतलब जो कल को जो है वो आपके आपके नाम को रोशन करेगा, उनके पेरेंट्स के नाम को रोशन करेगा, बड़ा करेगा जिंदगी में. और आप ऑनेस्टली लाइक बीइंग इन दिस स्टेट, फिर भी जाके वॉशरूम में जाके यू ब्लोइंग ऑफ लोड्स, मतलब दैट इज द सैडेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. आई वांट यू टू जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि आपकी कोई वीडियो बना रहा है व्हाइल डूइंग दिस. हाउ वुड यू फील? आपको बुरा नहीं लगेगा? मतलब what if I recorded that video and showed it to your mother, showed it to your father? What would they say? उन्हें कैसा लगेगा? They will be repulsed by you. They will be embarrassed of you. Try to. They say that negative visualization is a lot stronger than positive visualization. Why don't you let your brain do that negative visualization for you? Try to imagine what would your parents say if you recorded a video of you doing something like this. And I won't go into much details. There are a lot of sisters in this call as well. But if you showed that video to your parents, they won't be proud of you. They would be repulsed of you. Next time आपके दिमाग में ये चीज आ रही है ना, try to imagine that face of your parents if they recorded a video of you doing something like this, and you'll never do it again. मैं इस चीज के ऊपर at length अभी नहीं बात करूंगा because there are a lot of sisters in this call as well, and I want to maintain a more respectful vibe. Wait for the questions का time, अब्दुल्ला दी. अच्छा, इसके बाद इंट्रोडक्शन अबाउट लाइव सेशन. सो लाइव सेशंस कारवा के अंदर जो है वो मंथ में 1 हुआ करेंगे. काफला के अंदर वीक में 2 होते हैं, क्योंकि काफला के अंदर देयर आर लॉट ऑफ कोचेस. मैं भी हूँ, कोचेस भी हैं, एंड काफला के अंदर हम लोग ट्वाइस अ वीक सेशंस होल्ड करते हैं. दे आर मोर फोकस्ड अराउंड बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइड हसल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आप नोटिस करें, आप ये चीज नोटिस करें कि मैंने कभी भी किसी ऐसी चीज के ऊपर क्लेम नहीं किया जो मुझे नहीं आती. मुझे ट्रेडिंग नहीं आती. मुझे ट्रेडिंग नहीं आती. आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई टू सेल यू एनीथिंग रिगार्डिंग ट्रेडिंग बिकॉज आई हैवंट डन इट इन माय लाइफ. आई हैवंट डन ई कॉमर्स येट. तो ई कॉमर्स के इर्द मैं आपको कोई रिसोर्स सेल करने की कोशिश नहीं करूंगा. आई डोंट नो इट. इट वुड बी डिसइनजेन्युअस ऑफ मी. जो चीजें मैंने की हुई हैं और जिन चीजों का सोशल प्रूफ मेरे पास है और आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, इस वजह से आप इस कम्युनिटी में, और इसी वजह से काफला के अंदर भी लोग कम्युनिटी के अंदर हैं. आई कुड वेरी वेल कम अप एंड से कि भाई हाँ भाई, एयरबीएनबी सब लीजिंग जो शहीर को आती है, जो माशाल्लाह 7 लाख रुपीस पर मंथ पैसिवली कमाता है थ्रू हिज एयरबीएनबी सब लीजिंग बिजनेस, मैं उसे बोलूं कि यार बस तू मुझे सिखा दे कि कैसे कैसे करना है, मैं बैठ के लड़कों को सिखा दूंगा. किसी को क्या पता है कि यार मैं कमा रहा हूँ या तू कमा रहा है. बट आई पेड मनी आउट ऑफ माई ओन पॉकेट इन ऑर्डर टू ऑनबोर्ड शहीर, हु इज अ फ्रेंड ऑफ माइन.
ताकि आपको जिससे एडवाइस मिल रही है वो वही बंदा है जिसने वो काम क्रेडिबली किया हुआ है। शहजाद खान, कॉपीराइटिंग मुझे भी आती है, कॉपीराइटिंग के थ्रू मैंने भी पैसे कमाए हुए हैं, कॉपीराइटिंग से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। आई स्टिल ऑन बोर्डेड शहजाद खान, स्पेंडिंग मनी आउट ऑफ माई ओन पॉकेट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस बंदे को अपनी कम्युनिटी के अंदर रखना चाहता हूँ जो क्रेडिबल रिसोर्स है, जिसका सबको पता है, जो एक अथॉरिटी के तौर पे बिल्ट अप है, जिसके पास सोशल प्रूफ मौजूद है। मैंने कॉपीराइटिंग के थ्रू इतने नॉट इवन नियरली एज मच पैसे कमाए हुए जितने शहजाद भाई ने कमाए हुए। Shahzad Bhai has mashallah generated more than $27 million in revenue for his clients through his copy. I haven't done that. So would I try to sell copywriting to you? No. Yes, I will sell it to you if Shahzad Khan is inside of my community, because I've paid out of my own pocket in order to hire him as a coach for my private community. I could very well come up and say कि भाई मैं सिखाऊंगा। क्या मैंने बोला कि मैं हेल्थ एंड फिटनेस सिखाऊंगा? हेल्थ एंड फिटनेस आई एम इन प्रीटी डिसेंट शेप, ठीक है, मैं डिसेंट शेप में हूं, बट आई डोंट ट्राई टू टीच हेल्थ एंड फिटनेस बिकॉज आई हैव ऑन बोर्डेड समवन जिसने फवाद खान को ट्रेन किया हुआ है, जिसने जिसने हमजा अली अब्बासी को ट्रेन किया हुआ है, हु इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन बॉडी बिल्डिंग इन पाकिस्तान, हु इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड बॉडी बिल्डिंग नेम इन पाकिस्तान. I pay money out of my own pocket in order to onboard him. I could very well come up and say, and I'll teach it to you. I have a better physique than most people, but I don't. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से भी बेहतर एक अथॉरिटी मौजूद है जिसको मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर इंटीग्रेट कर सकता हूँ. This goes with AI automation. This goes with bodybuilding. This goes with copywriting. This goes with Airbnb subleasing. क्या चीजें मुझे आती हैं जो मैं कम्युनिटी के अंदर सिखाता हूँ. पर्सनल ब्रांडिंग. पर्सनल ब्रांडिंग में 6 months के अंदर मैंने माशाल्लाह 300,000 फॉलोअर्स कर लिए थे. मैंने YouTube के ऊपर 3 months के अंदर 35,000 सब्सक्राइबर्स किए. सारा कुछ आपके सामने. I don't have to come up here and lie to you. You're here because of those followers and subscribers essentially. वो पर्सनल ब्रांडिंग प्रिंसिपल्स कि आप कैसे एक अपनी ऑडियंस को ग्रो कर सकते हैं और कैसे आप एक ऑडियंस के थ्रू मोनेटाइजेबल इनकम अर्न कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर खुद सिखाता हूँ क्योंकि मुझे आती है. मैंने खुद एक्सिक्यूशन की भी है उस पर. मैं टैलेंट एजेंसी सिखाता हूँ बिकॉज टैलेंट एजेंसी इज समथिंग व्हिच आई हैव डन माई सेल्फ. ठीक है, तो ये चीजें मैं टीच करता हूँ. Confidence and communication skills is something which I have personally acquired through a lot of exposure and a lot of experience. And I used to be someone who was completely introverted for most of his life. If you guys think you're introverted, आपने मुझे नहीं देखा when I was younger. I used to be the kind of person जो basically family gatherings के अंदर भी ना, अगर family के अंदर सारे के सारे बैठे हुए हैं और लोग आपस में बात कर रहे हैं, I would be trying to, push myself to initiate a conversation with someone, but I simply couldn't. क्योंकि मुझे डर था कि मैं अगर कुछ बोल दूंगा I'll be made to look like a fool. एंड अगर मैं गलती से एक आधी बात कर लेता था या कोई मुझे हल्की फुल्की अटेंशन दे देता था, तो I used to be so scared of that कि I would basically just go ahead and lock myself in the bathroom, not because I had to go to the bathroom, but because I was so drained because my social energy was basically non-existent. तो ये बात TLDR ये है कि I only teach what I have personally done. वो चीजें जो मुझे खुद पर्सनली नहीं आती या मेरे से बेहतर किसी को आती हैं, मैं ऐसे कोचेस को ऑनबोर्ड करता हूं जिनको मैं अपनी जेब में से पैसे देता हूं. यू डोंट हैव टू पे दैट मनी, नियरली नॉट एज मच एज आई पे टू दीज कोचेस. अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप कहेंगे कि यार उजैर भाई आपकी तो जेब पे अच्छा खासा डेंट पड़ रहा है जितने आप पैसे दे रहे हैं इन कोचेस को. तो ये थोड़ा सा TLDR था टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ एन ओवरव्यू कि व्हाट इज टू कम, हम लोग किस तरह कम्युनिटीज को मैनेज करते हैं और हाउ वी बेसिकली डू व्हाट वी डू. एज वी एड मोर रिसोर्सेज इनटू द कम्युनिटी, कारमा के अंदर विल बी इंटीग्रेटिंग अ myriad of soft skills. It is going to be communication skills, discipline, mindset, dopamine detoxing, university guides, student guides, how to ace your exams. ये सारी चीजें हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इनटू कारमा. काफला के अंदर जो है वो इट इज अ लॉट मोर फोकस्ड ऑन बिजनेस, नेटवर्किंग एंड मनी मेकिंग. So that is the difference between both of these places. And why is business and money making in Kafla and why is soft skills inside of Karma? Because Karma के अंदर it is basically a step ladder system. मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले fundamentals को strong करें. I didn't just start making money as soon as I decided कि मैं online business restart करना चाहता हूं या online business start करना चाहता हूं. I am sitting in an office right now जो मैंने खुद अपने पैसों से बनाया. क्यों? क्योंकि मैंने खुद earn किए.
कैसे एंड किया? ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू। ऑनलाइन बिजनेस मैंने कैसे किया? डिड आई जस्ट डिसाइड वन डे कि भाई मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और अगले दिन मैंने पैसे बना लिए? नो नो। मैंने क्या किया कि आई स्टार्टेड फ्रॉम द फंडामेंटल्स, आई स्टार्टेड फ्रॉम द जिम, आई स्टार्टेड फ्रॉम डायलिंग इन माय माइंडसेट, आई स्टार्टेड फ्रॉम डिसिप्लिन, I started from communication skills, I started from networking, I started from confidence. These are the things which you need to work on as well. देखो, on the internet there is so much information out there, so much information out there. But ये सारी information basically causes something which is called analysis paralysis. Someone is telling you कि भाई e-commerce start कर लो, someone is telling you कि भाई trading start कर लो, someone is telling you कि Airbnb सब leasing कर लो, कोई आपको कह रहा है आके कि AI based drop shipping is the way to go. But amongst all of this noise, you have to understand कि ये सारे business models जब तुम अपने आप से सवाल पूछते हो ना कि which of these work, मैं कौन सा start करूं? All of them work. All of them work if your fundamentals are in check. Fundamentals in check होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वो नहीं एग्जिस्ट करते तो इन चारों, पांचों, छयों, हजारों बिजनेस मॉडल्स में से कोई भी स्टार्ट कर लो, आई कैन गारंटी यू कि यू विल फेल. I can guarantee you कि you will fail. If I hand a lucrative running business to your hands right now, you will crash it. आप तबाह कर दोगे उस बिजनेस को. उसके मंथली की रिकरिंग रेवेन्यू को आप महीनों के अंदर कंप्लीटली जीरो पे ले आओगे. बिकॉज आपका अभी इस वक्त माइंडसेट भी नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है. यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल. एंड व्हेन दीज फंडामेंटल्स डोंट एग्जिस्ट, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि एक रनिंग बिजनेस को आप प्रॉफिटेबली में कन्वर्ट कर सकते हो? हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि कल के दिन आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे एंड यू कैन मेक दैट प्रॉफिटेबल? दैट इज जस्ट यू बीइंग प्लेन एंड सिंपली एरोगेंट. यू हैव टू स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स. मैं ये चीज बहुत ज्यादा बोलता हूँ कि अगर बंदा जिम जाना स्टार्ट करता है तो ही कांट एक्सपेक्ट टू स्टार्ट फ्रॉम Zotman curls and Arnold presses. He starts from military presses. He starts from bench press. He starts from rowing. He starts from lat pull downs. That is where the journey starts for him. You don't tell him on day one that you can start taking steroids now. It's time for you to really level up your physique. You start from the fundamentals. अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो जितने भी स्टेरॉइड आप अपने आप को ठोक लो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला. Do you understand these things? तो इस वजह से फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने फंडामेंटल्स पे वर्क करेंगे, एंड दिस कम्युनिटी इज मेड फॉर फंडामेंटल्स. क्योंकि मुझे पता है कि आपको अगर मैं काफला के अंदर ले भी आता हूँ, you're not ready for काफला yet. You're simply not ready for काफला yet. I genuinely tell all of you guys, ये इधर जितने भी 50-56 लोग बैठे हुए, कोई भी काफला को ज्वाइन ना करे अगर उसने फंडामेंटल्स को नहीं स्ट्रॉन्ग किया. कोई भी ना ज्वाइन करे, बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है. आप वहां पे आके नहीं उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कर सकते. मैंने वहां पे सारी रिसोर्सेज रखी हुई है, बट अगर आपके पास ये डिसिप्लिन नहीं है कि आप बैठ के उन रिसोर्सेज को देखें, अगर आपके पास एक्शनेबिलिटी नहीं है कि आप उसके ऊपर एक्शन लें, अगर आपके पास डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं है कि जब तक आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं तब तक आपको रिजल्ट्स जब नहीं भी मिल रहे फिर भी यू कीप गोइंग, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप काफला के अंदर आके बहुत बड़े कुछ शहंशाह आदमी बन जाएंगे? यू नीड टू मास्टर द फंडामेंटल्स फर्स्ट. जब तक उसको नहीं मास्टर करोगे तब तक ना काफला को ज्वाइन करो, ना किसी और की कोर्स को खरीदो. मेरे कोर्स को ना खरीदो यार. मतलब मेरी जो कम्युनिटी है काफला में, आपको अभी बोल देता कि यार जाओ जाके खरीद लो, ना खरीदो. अभी फायदा ही नहीं है उसको खरीदने का जब तक फंडामेंटल्स को ठीक नहीं कर लेते. तो द क्वेश्चन दैट यू बीन आस्किंग ऑल योर लाइफ कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, दैट इज द रॉन्ग क्वेश्चन. देयर आर टू थिंग्स. एक होती है कॉज, एक होती है इफेक्ट. कॉज और इफेक्ट में एक डिस्टेंस होता है. आप एक इफेक्ट को इफेक्ट से चेंज करने की कोशिश नहीं करते. मैं अभी पैसे नहीं कमा रहा, मैं जो है वो इसको चेंज करने की कोशिश करता हूं बाय अनदर इफेक्ट. व्हाट इज द कॉज कि आप पैसे नहीं कमा पा रहे? योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग. So you need to change this cause, not an effect. You can't change an effect by an effect. You change an effect by changing the cause, by addressing the cause. अगर आप sad feel कर रहे हैं तो there is a reason you feel sad. There is an underlying reason that you feel sad. You might not be in shape. You might not be in the best shape. You might not be making money. ये सारी की सारी चीजें हैं जिसकी वजह से you don't feel good. When you don't feel good, तो फिर आप कॉज को एड्रेस करने की कोशिश करते हो, आप सिम्टम को एड्रेस नहीं करने की कोशिश करते. यू डोंट ट्राई टू पॉप अ पिल इन ऑर्डर टू फॉरगेट कि भाई आप जो है वो मेंटल टर्मोइल के अंदर हैं. मैं ये चीज बहुत ज्यादा बोलता हूँ कि जो लोग डिप्रेशन के थ्रू गो थ्रू करते हैं, जो कहते हैं कि हमें डिप्रेशन हुई भी है, आप इमेजिन करेंगे डिप्रेशन इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक दिस. वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन, हेट ऑन मी इफ यू हैव टू. दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज व्हाट यू शुड बिलीव. जब तक इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करोगे तब तक आप अपने दुश्मन सबसे बड़े खुद ही बने रहोगे. दिस इज हाउ डिप्रेशन वर्क्स. आप इमेजिन करो कि एक सालन का देगचा, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सालन का देगचा लेके जा रहे थे.
रास्ते में वो सालन का देगचा गिर गया, आपको ठोकर लगी, सालन का देगचा सारा नीचे गिर गया। अब नीचे कालीन के ऊपर भी सालन सालन हुआ है, बोटियां उधर सोफे के बीच में फंसी हुई हैं। अब देर आर टू वेज। अब ये सालन गिरने की वजह से ऑब्वियसली आपको टेंशन होगी, आप स्ट्रेस्ड हो गए, आप सैड हो गए। देर आर टू वेज टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, दिस कॉज। देर आर टू वेज ऑफ एड्रेसिंग दिस। ऑप्शन नंबर वन इज कि आप एक गोली खा लें जिससे आपको भूल जाए कि, और आप खुश हो जाएं इस चीज से कि नीचे सालन गिरा है। एंड दूसरी ऑप्शन इज कि आप नीचे बैठें, कपड़ा पकड़ें और उस सालन को साफ करें। So which option would you choose? Would you choose to address the cause or address the effect? Because if you're trying to address the effect, then you're playing life wrong right now. You won't ever be successful this way. You have to make this relationship with yourself कि आप हर चीज के लिए self accountability लेते हैं। Your depression didn't come from the sky. Your depression wasn't genetically instilled in you. It was something that came because of a cause. आप उस कॉज को एड्रेस करें, ओवरऑल लाइफ में पहले कॉज को एड्रेस करें। इस वजह से TLDR इज डोंट ज्वाइन काफला। ऑनेस्टली ऑल ऑफ यू गाइस डोंट ज्वाइन काफला। सबसे पहले फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, एंड दिस इज व्हाट दिस कम्युनिटी इज अबाउट। आई एम गोइंग टू ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस नाउ, सो एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चंस कैन रेज देयर हैंड। कोई भी बंदा जिसकी वीडियो ऑन नहीं है उसका मैं क्वेश्चन एड्रेस नहीं करूंगा। You have to have your video on. You have to raise your hand. Go ahead and click the raise hand button down there, and I will address your question at length. हम लोग 3 hot seats करेंगे। जो भी पहले hand raise करेगा उसका question पहले address होगा। अच्छा जी, अफनान, अफनान अशरफ, माइक अनम्यूट कर लें अफनान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अफनान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर मैं तकरीबन अभी एफएससी के एग्जाम से फ्री हुआ हूँ और अभी कोई पढ़ाई वगैरह का काम नहीं है, पर लेकिन मैं ना मॉर्निंग रूटीन को काफ़ी देर से ना कोशिश कर रहा हूँ, पर लेकिन वो रात वाली रूटीन 2 सालों से बनी हुई है, तो अभी तक 2 दिन सही होती है, उसके बाद दोबारा ख़राब हो जाती है, तो वो आप एड्रेस करते हैं। आप किसके एग्जाम से अभी फ्री हुए हो? आई कुडंट हियर यू। फ्री हुआ हूँ और 2 साल मेरी नाइट रूटीन ही रही है, रात को लेट सोना और सुबह लेट उठना, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मॉर्निंग रूटीन करूँ, फजर के टाइम उठूँ, तो वो नहीं हो पा रहा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो पा रही और कैसे बात करते हैं। पहली चीज तो ये रियलाइज कर लो कि देखो, ये तो हमारा दीन भी कहता है कि सुबह का टाइम काम करने के लिए और रात का टाइम आराम करने के लिए। तो ये आर्ग्यूमेंट के यार रात के टाइम में ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, मैंने भी खुद नाइट टाइम रूटीन अडॉप्ट करके देखी हुई है अपने स्टूडेंट ईयर्स के अंदर, और मैं इसी कंक्लूजन पे आया था कि नाइट टाइम रूटीन्स आर बेसिकली जस्ट कोप्स। कोप का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को बता रहे होते हो कि हाँ मैं बहुत प्रोग्रेस कर रहा हूँ, but you're not actually making that much progress. You're just telling yourself that you're making a lot of progress. मुझे एक सेकंड अपने जूतों को ठीक कर लेना दो, पसीना आ रहा था जूतों में, बड़ी गर्मी है यार इस्लामाबाद में। तो नाइट टाइम रूटीन्स जो है ना वो मैंने खुद अपने स्टूडेंट ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश किया, बट आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू एंड दिस इज मोस्ट प्रॉब्ली द केस फॉर यू राइट नाउ एज वेल। कि आप रात को बैठते होगे टेलिंग योरसेल्फ कि यार हाँ मैं पढ़ाई करूंगा बहुत ज्यादा, बट जब आप रात को बैठते हो तो क्योंकि रात को मैसेजेस भी आ रहे होते हैं आपके दोस्तों के, आपके दोस्त आपको फनी रील्स भेज रहे होते हैं, तो आप वो उठा लेते हो फोन पढ़ाई के दौरान, और उसकी वजह से आपका फोकस कंप्लीटली तबाह हो जाता है। तो एक तो ये बात आ जाती है, और दूसरी बात ये कि यार रात के टाइम वैसे ही बंदे की वो मेलेटोनिन भी रिलीज हो रही होती है, बंदे के मतलब अजीब बंदा लेथार्जिक सा फील कर रहा होता है। तो मुझे तो कभी भी समझ नहीं आई ये रात वाली रूटीन की। मैंने जब से सुबह वाली रूटीन अपनाई है तब से मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है। आई बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू। देयर इज अ बुक व्हिच आई रेड व्हिच वाज द मिरेकल मॉर्निंग बाय हैल एलरॉड। आपने नोटिस किया होगा मैं बहुत ज्यादा अपनी वीडियोस के अंदर भी किताबों के बारे में बहुत बोलता हूँ, एंड इट इज बिकॉज मैं किताबों के अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैं कहता हूँ कि किसी बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी का क्रक्स उठा के एक किताब के अंदर लिखा हुआ है, सारी वो मिस्टेक्स के बारे में बताया हुआ है जो उसने की थी, सो दैट यू कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग। तो उससे ज्यादा हाई लेवरेज और कीमती चीज आपके लिए क्या हो सकती है? तो व्हाई नॉट गो अहेड एंड रीड द बुक्स ऑफ पीपल हु हैव डन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। तो हैल एलरॉड की किताब द मिरेकल मॉर्निंग इज अ वेरी गुड सजेशन फॉर यू, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अ लिटिल सीक्रेट।
सीक्रेट क्या है, बड़ी वाज़ेह सी बात है, लेकिन हम इस चीज को इस लेंस से कभी सोचते नहीं है। आप इमेजिन करो कि दो लोग एक रेस स्टार्ट करते हैं। एक जो है जब रेस स्टार्ट करता है तो शुरू में ही लड़खड़ा जाता है, अड़ंगी खा लेता है और नीचे गिर जाता है। दूसरा जो उसके साथ वाला बंदा होता है वो शुरू में ही उसका स्टार्ट बड़ा स्ट्रांग किस्म का होता है। इन दोनों में से रेस कौन जीतेगा? जिसका स्टार्ट अच्छा हुआ है। स्टार्ट अच्छा हुआ है तो इस वजह से उसके पास मोमेंटम है। मोमेंटम है तो उसके पास रेस की बेहतर आउटकम है। तो आप अगर सुबह के टाइम पे उठना शुरू कर दोगे और आप सुबह में ही आप कोशिश करोगे कि आप इस चीज पे सिर्फ फोकस करो कि मैंने पहले 1 घंटे को प्रोडक्टिव बनाना है। आप अगर सिर्फ इस चीज को डायल इन कर लेते हो, आई कैन गारंटी यू कि आपका पूरा दिन बहुत बेहतरीन किस्म का गुजरेगा। इट विल बी एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव। आप इसके थ्रू जितने भी आपने गोल्स अचीव करने होंगे अपने दिन के अंदर, वेदर इट्स कंप्लीटिंग अ चैप्टर, वेदर इट्स कंप्लीटिंग 2 चैप्टर्स, वेदर इट्स वर्किंग ऑन योर साइड बिजनेस, वेदर इट्स वर्किंग ऑन योर मेन बिजनेस, ऑन योर जॉब, यू विल बी एबल टू गेट अ मच बेटर आउटकम अगर आप सुबह के टाइम पे जो है वो मोमेंटम को गेन कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर लेट्स इमेजिन कि एक लड़का है जो अभी रात को 2 बजे सोता है। उसका गोल ये है कि वो सुबह 6 बजे उठे। तो वो क्या करता है कि रात को 2 बजे सोता है, अलार्म ही 9 बजे का लगाता है कि यार अब 7 घंटे की नींद ना पूरी हुई तो सुबह के टाइम में बहुत ज्यादा लथार्जिक किस्म का होऊंगा, तो छोड़ो, अब मैं कल से कोशिश करूंगा कि मैं अपनी नींद ठीक कर लूं। बट मैं आपको बताता हूँ मेरा जाती तौर पे तरीका, और ये मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तानी देसी नेशनल तरीका है। और वो तरीका ये है कि आप रात को जब 2 बजे सोते हो तो आप अलार्म ही 6 बजे का लगाओ। 4 घंटे एक रात नींद पूरी करो। अगले दिन पूरा दिन सोना नहीं है। लेकिन जब सोने की अर्ज होती है ना, तो नैप नहीं लेना, ये एक कैलूला लेना है। आपको पता है एक सुन्नत है कैलूला। कैलूला ये होता है कि आप अपनी कुर्सी के अंदर बैठते हैं, आप अपनी इस तरह करके, जिस तरह अब ये मेरे पास कुर्सी पड़ी हुई है, मैं इसके ऊपर बैठूंगा, अपनी टांगे ऊपर रखूंगा और मैं यहाँ पे सो जाऊंगा। इसका मैं आपको फायदा बताता हूँ। अगर आप इस तरह सोते हैं ना, तो अगर तो आपको नींद आई भी है जेन्युइनली, तो यू विल फॉल asleep within 2 minutes. If you're genuinely tired and if you genuinely feel the urge to sleep, you will fall asleep within 2 minutes. When you do fall asleep within 2 minutes, आप विदिन 10-15 मिनट खुद ही ऑटोमेटिकली जाग जाएंगे। वजह मैं आपको उसकी बताता हूँ। आपके पाँव बेसिकली अपने ये जरा हायर लेवल के ऊपर पड़े हुए, इसकी वजह से विदिन 10 मिनट्स आपका पैर सो जाएगा। वो सोने की वजह से आपको नेचुरली जाग आ जाएगी। ठीक है। और अगर आपको नींद नहीं आ रही ना इस तरह बैठे हुए, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट रियली टायर्ड। तो आप पूरा दिन इस तरह करके गुजारें, कोई भी बड़ा नैप ना लें, घंटे का 1.5 घंटे का कोई नहीं नैप लेना। अगर लेना है तो कैलूला लेना है, और फिर उसके बाद रात को उस टाइम पे सोएं जो आपका डिजायर्ड टाइम है सोने का। दिस वाज हाउ आई यूज्ड टू फिक्स माय रूटीन। वो होता है ना कि बंदे की रमजान में पूरी रूटीन खराब हुई भी होती है, चांद रात पे बंदा सोच रहा होता है कि यार रात को अगर मैं लेट सो गया तो सुबह मेरा पूरा दिन खराब हो जाना है, मेहमानों के सामने ऊँगें आ रही होंगी। So this was how I used to fix my routine. And ever since I've changed my routine and become a morning person, I'll be completely honest with you, and I'm not sugarcoating it when I say this. My life has changed. मैं सुबह के टाइम पे एक रूटीन करता हूँ which is very very simple, very very actionable. This is a morning routine which you can adopt as well. मेरी करंट मॉर्निंग रूटीन इज अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स। मैं आपको वो नहीं बताऊंगा अभी, वोंट बी रियली एप्लीकेबल टू यू। बट मैं आपको एक सिंपल सी मॉर्निंग रूटीन बताता हूँ जो आप कर सकते हो, बीइंग समवन हु इज बेसिकली ट्राइंग टू फिक्स हिज रूटीन। सुबह के टाइम उठो, जाके बाहर फौरन फौरन अपने कमरे की लाइट ऑन किए बगैर बाहर जाओ, अपने टेरेस में स्टेप कर लो, अपनी छत के ऊपर चले जाओ, बाहर अपनी क्यारी के अंदर चले जाओ, किसी भी जगह के अंदर चले जाओ जहाँ पे मॉर्निंग सनलाइट आ रही है। अब बहुत से लोग यहाँ पे बोलते हैं कि यार मॉर्निंग सनलाइट, भाई मैं जर्मनी में रहता हूँ, सूरज निकलता ही नहीं है यहाँ पे। भाई सुबह के टाइम पे जिस भी टाइम पे आप जा रहे हो, बेशक इट्स द ग्लूमिएस्ट डे इन द वर्ल्ड, इफ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 कार्स और सिर्फ इतनी लाइट है ना, तो दैट इज इनफ लाइट। That is still better quality light for you than the light of your phone or the light of a bulb in your ceiling. तो सुबह के टाइम पे your first actionable step है कि आप एक मॉर्निंग रूटीन के अंदर मॉर्निंग सनलाइट लो। इफ यू डू दिस फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट ये करने के बाद वापस आ जाओ। यार 5 मिनट के लिए बेशक वॉक कर लेना, बाहर बाहर देख लेना, ग्रीनरी की तरफ देख लेना, डू एनीथिंग। 5 मिनट्स के लिए आपने मॉर्निंग सनलाइट लेनी है। और आपको जब आप मॉर्निंग सनलाइट ले रहे होगे, आप जैसे ही व्हेन यू स्टेप इनटू द सन, आपको ये होगा, आंखें नहीं खोली जाएंगी, बट विद इन अ फ्यू मिनट्स आपकी आंखें खुल जाएंगी पूरी, और आप जेन्युइनली उस टाइम पे इतना ज्यादा फ्रेश फील करोगे, आई कांट पुट इट इनटू वर्ड्स। पहली चीज आपने ये करनी। दूसरी चीज आपने ये करनी है कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कोई ना कोई स्केलेटल मसल ट्रेनिंग करनी है। इसके अंदर सिंपल पुशअप्स आ सकते हैं। यू कैन डू दीज 2 थिंग्स एट वंस एज वेल। आप बाहर गए हुए हो मॉर्निंग सनलाइट के अंदर, पंप आउट 10-15 पुशअप्स।
अगर आपसे नॉर्मल पुशअप्स नहीं होते, नीज के ऊपर पुशअप्स कर लो। अगर आपके ऊपर नीज आपसे नीज के ऊपर पुशअप्स नहीं होते, किसी चेयर के ऊपर हाथ रख लो और वो डिक्लाइन पुशअप्स कर लो। इन तीनों चीजों में से सॉरी, ये दोनों चीजें एक दफा कर ली, उसके बाद वापस अंदर आओ और जो भी आपका काम है ना, लेट्स से यूर समवन के जो बिजनेस करता है या जिसकी एक रिमोट जॉब है, तो जैसे ही आपने ये कर लिया उसी वक्त आप एक कप ऑफ कॉफी बनाओ, या फिर दिस अप्लाइज टू यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम एज वेल। ये दोनों चीजें करने के बाद वापस आओ, ग्रैब अ कप ऑफ ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी सादी स्ट्रेट अप है, गर्म है, इसको पकड़ो, इसको पीना शुरू करो और डायरेक्ट अपने काम के ऊपर बैठ जाओ। तो विद इन 5 मिनट्स आपने बेसिकली अपने सर्केडियन रिदम को रेगुलेट कर लिया, आपने अपनी बॉडी को कंप्लीटली फ्रेश कर दिया, आपने अपने जिस्म के अंदर जो थकावट थी उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया बाय डूइंग दोस पुशअप्स, बिकॉज नाउ द ब्लड इज ऑल ओवर योर बॉडी। आपने ये करने के बाद आप बैठ के हो जब पढ़ने के लिए, तो इससे फायदा ये होगा कि जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको वो थकावट और नींद नहीं महसूस होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब आप उस टाइम पे बैठोगे तो आपको थकावट, नींद, ऊँघें, इन चीजों का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। यू विल बी एबल टू वर्क वेरी प्रोडक्टिवली। एंड बिकॉज आप साथ साथ कॉफी पी रहे हो, वो इवेंचुअली आपको और ज्यादा जगाती रहेगी। डोंट ऐड मिल्क इनटू दिस कॉफी, बिकॉज अगर आप मिल्क इसके अंदर ऐड करोगे तो आपका थोड़ा सा खून जो है वो बेसिकली आपके डाइजेशन के ऊपर लग जाएगा, क्योंकि फैट इज बेसिकली वेरी स्लो टू डाइजेस्ट। तो आप ये ब्लैक कॉफी आप पी रहे हो, साथ साथ आप अपना काम शुरू कर दो। और इस काम के दौरान आपने ये करना है कि ट्राई टू बेसिकली वर्क फॉर 2 to 3 आवर्स स्प्रिंट्स। 2-3 घंटे के स्प्रिंट्स करो। ऑल ऑफ दीज फैंसी पोमोडोरो टेक्निक्स भाई मुझे आज तक समझ नहीं आई, ठीक है। ये जो कहते हैं कि भाई 50 मिनट के लिए काम करो और फिर 10 मिनट के लिए रीलें स्क्रॉल करो, आई बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू, दैट इज जस्ट कंप्लीटली कोक एंड दैट इज द मोस्ट बुलशिट एडवाइस दैट आई हैव एवर हर्ड। अगर आपने उस 10 मिनट के अंदर कुछ करना भी है तो आप जाके एक्सरसाइज कर लो, दोबारा पुशअप्स कर लो। आपने बेसिकली इस 3 घंटे की स्प्रिंट के अंदर इस तरह करके काम करना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, सारे ये चीज ट्राई करके देख लो, कल ट्राई कर लेना, कल सुबह ट्राई करना। जब तक जुमे की अजान नहीं होती ना, इफ यूर एट होम, जब तक जुमे की अजान नहीं होती ना कल, तब तक आपने बेसिकली अपना वर्क ब्लॉक करना है। और फिर जुमे की अजान के बाद ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द डे इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू। जाओ अपने दोस्तों के साथ बाहर, जाओ जाके अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करो, जाके अपनी स्पोर्ट्स खेलो, गो एंड रीड दैट बुक, ये सारी चीजें करो। इस तरीके से अगर आप इस एग्जैक्ट फॉर्मेट से चलते हो और आप अपने सुबह के मॉर्निंग ब्लॉक के अंदर यू ट्राई टू गेट 80% ऑफ द वर्क डन फॉर द डे, आई गारंटी यू इफ यू कीप डूइंग दिस रेगुलरली योर लाइफ विल चेंज। मैं आपको जेन्युइन ये बात बता दूं। अच्छा, so let's move to the next question. अच्छा जी, उमर अनायत was the next person to raise their hand. अस्सलाम वालेकुम ज़हर भाई, होपफुली यू विल बी फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह उमर, आप great seeing you. थैंक यू। सबसे पहले तो इट्स एन ऑनर टू सी यू लाइव, क्योंकि 6-7 महीने से मैं आपको देख रहा हूँ एंड आई एम अ मेड स्टूडेंट एज वेल, तो आई कैन रिलेट टू यू लाइक। अच्छा, पहला मेरा सवाल ये था, वो आपसे था कि आप अपनी मेडिकल जर्नी आगे परस्यू कर रहे हैं या नहीं, और सेकंड मेरा सवाल ये था कि इज कॉपीराइटिंग वर्थ इट इन 2025 एंड आप यूएसएमएलई के साथ इसको किस तरह इंटीग्रेट करके चल सकते हैं कि आपका मेड स्कूल भी चलता रहे और मैं यूएसएमएलई भी साथ करता रहा। अच्छा, पहले तो यार ये बहुत खुशी हुई मुझे ये बात सुन के कि आप भी मेडिकल स्टूडेंट हो। माशाल्लाह, बहुत प्रेस्टिजियस किस्म का ये प्रोफेशन है। यार उमर, ऐसा हुआ ना कि दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई हैव बीन आस्क्ड क्वाइट अ लॉट। मैंने इतना ज्यादा एड्रेस नहीं किया बिकॉज मेरी व्यू जो है वो शायद 99% लोगों को ना समझ आए। बट मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस था। आई एम नॉट टेलिंग यू टू अडॉप्ट माई थॉट प्रोसेस। आप इस वक्त मेडिकल के ऊपर लगे हुए हो, बहुत खुशी से लगे हुए हो, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे अपने करियर के अंदर। मेरा थॉट पॉइंट, एंड आई एम अबाउट टू बेसिकली throw a lot of shade on medical students and on medical profession as a whole. The problem with medical is कि for me personally, मैं जब अपने 3rd ईयर के अंदर था, एक्चुअली 2nd ईयर के एंड के अंदर, तो मैंने क्या किया कि मैंने ऑनलाइन इनकम को परसू करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी। विद इन अ फ्यू मंथ्स आई बेसिकली अर्न माई फर्स्ट इनकम ऑनलाइन, एंड वो अर्न करके मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि यार मैं जो हूँ
मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मैं अपने यंगर ईयर्स के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूँ, और मैं अपने यंगर ईयर्स के अंदर चाहता हूँ कि मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा हूँ। बहुत से लोग हैं, मेरे ख्याल में मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, तो आपको अपने पीछे एक बहुत बहुत अमीर फैमिली चाहिए। क्योंकि आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, इफ एनीवन एल्स इज ऑन दिस कॉल हु इज आल्सो अ मेडिकल स्टूडेंट, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप एफसीपीएस करेंगे और उसके थ्रू फिर आप पैसे इतने कमाना शुरू कर देंगे कि आपके पास महलों की चाबियां इकट्ठी हो जाएंगी, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर आप एफसीपीएस कर रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, आप समझ लें कि आपकी जलालत है सिर्फ। यानी विद इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स का मतलब है एमबीबीएस के बाद अगले 3-4 साल आपकी जलालत है। मैं पीजी से मिला हूं, मैं रेजिडेंट से मिला हूं, सर्जरी के रेजिडेंट से मिला हूं माशाल्लाह, जो बहुत अच्छे पॉइंट पे हैं अपने करियर के, बट दे आर 27 years of age earning 65,000 रुपीज सैलरी। समझ लो इस बात को। अब 65,000 रुपए से एक अकेले लड़के का भी गुजारा नहीं होता मेरे ख्याल में आजकल के टाइम के अंदर। तो वो 65,000 रुपए के अंदर वो एक बीवी को कैसे एग्जैक्टली अकोमोडेट करेगा, मुझे नहीं समझ आती। तो इवन अगर वो बेसिकली अपने एफसीपीएस के ऊपर काम करता रहता है, 30-32 साल की उम्र में वो एक इस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पे वो 3-4 लाख रुपए महाना कमा रहा है while working excruciatingly long hours, तो was that FCPS really worth it? अपनी सारी जवानी तबाह कर दी chasing something financial freedom under the guise of कि भाई I am basically passionate for medicine, when he wasn't really passionate about medicine at all, he was only passionate about the financial freedom that medicine promised him. तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ही चाहिए था और मेडिसिन ने आपको वो प्रॉमिस किया हुआ था और मेडिसिन ब्रोक दैट प्रॉमिस, व्हाई नॉट गो एंड फाइंड दैट फाइनेंशियल फ्रीडम समवेयर एल्स? Why not delve into the world of online business? ऑनलाइन बिजनेस यार, मैं इतना ज्यादा ये चीज बोलता हूँ, पाकिस्तान में चलो ठीक है अब कुछ शऊर आना शुरू हो गया, बाहर के ममालिक के अंदर आप अगर हमारे साथ कंपेयर करो, मैं ये चीज बहुत ज्यादा बोलता हूँ, बाहर के मुल्क हमारे से 10 साल आगे हैं। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, बाहर के मुल्क इस्लामाबाद से 10 साल आगे हैं। कराची हमारे से 3-4 साल आगे है, इस्लामाबाद वालों से 3-4 साल आगे कराची है, और इस्लामाबाद से मेरे ख्याल में 10 साल आगे बाहर के ममालिक हैं। कराची में टैलेंट बहुत बेहतर है इस्लामाबाद से, कराची में वर्कफोर्स बहुत बेहतर है इस्लामाबाद से, बहुत ज्यादा स्किल्ड है इस्लामाबाद से, और एज कम्पेयर टू दैट भाई बाहर के ममालिक के अंदर जिस लेवल पे ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, जिस लेवल पे सिस्टम्स रन कर रहे हैं, जिस लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप है, ऑनेस्टली वी आर सो बिहाइंड। मैं मेरे पर्सनल बिजनेस के अंदर 8 या 10 हम लोग टूल्स यूज करते हैं, सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं, जो सारे के सारी बाहर की कंपनीज हैं। आज तक मैंने एक ऐसा टूल नहीं देखा जो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ हो। पाकिस्तान के अंदर जेपियर जैसा टूल बनाओ, मैनी चार्ट जैसा टूल बनाओ, लूम जैसा टूल बनाओ, सेंटफॉक्स जैसा टूल बनाओ, कन्वर्टकट जैसा टूल बनाओ। पाकिस्तान को इस तरह की चीजें नहीं बनानी आती। हमारे आईटी सेक्टर के अंदर उस लेवल की आर&डी है ही नहीं। हम सिर्फ ये करते हैं कि हम बाहर के ममालिक को कॉपी करते हैं और उन चीजों को एक्सिक्यूट करने की कोशिश करते हैं। हमारे एंड पे कोई आर&डी नहीं है। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन से थोड़ा सा डिविएट हो गया, बट व्हाई नॉट, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ही चाहिए था तो व्हाई नॉट गो एंड गेट दैट थ्रू समथिंग एल्स, थ्रू लर्निंग अ हाई पेइंग स्किल। एक और मेरा प्रॉब्लम विद एमबीबीएस एंड मेडिकल एज अ होल इज के medical is basically wired as a profession to only treat the symptom and not the cause. अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है जो कहता है कि भाई मैं मोटा हूं, मैं पैसे कोई भी नहीं कमाता, मैं आज तक जिम नहीं गया, मेरे से कोई लड़की बात नहीं करती, ये सारे मेरे प्रॉब्लम्स हैं, और वो मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि यार इसकी वजह से ना मैं सैड महसूस करता हूँ। यू नो व्हाट आई एम बेसिकली टोल्ड एज अ मेडिकल प्रोफेशनल टू डू? 3 बेसिकली क्राइटेरिया का ट्रायड होता है डिप्रेशन का: इजी फटीगेबिलिटी, लो मूड, और तीसरा एक मुझे भूल गया। बट अगर इन तीनों में से 2 चीजें हैं ना, तो मैं क्लिनिकली बेसिकली क्वालिफाइड इनफ टू प्रिस्क्राइब हिम एन SSRI, अ ब्रेन ऑल्टरिंग ड्रग। I am more than qualified to do that. तो I am basically trained to treat the symptom and not the cause. मैं उस बंदे को ये नहीं बोलूंगा, मैं उसकी पर्ची में नीचे वाले कोने के अंदर इतना छोटा सा लिखूंगा कि वजन कम कर ले, तू बेहतर फील करने लग जाएगा, जाके पैसे कमाना शुरू कर दे, तू बेहतर फील करने लग जाएगा। मैंने उस पर्ची के ऊपर नीचे छोटा सा लिखना है, लेकिन मैंने लिखना है सिटेलोप्राम 1+1 4 mg 0.4 mg, मतलब ये मैंने लिखना है। दिस इज व्हाट आई एम ट्रेन्ड टू डू एज अ डॉक्टर, नॉट एड्रेस द कॉज। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ मी, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ माई मोरालिटी। I am basically just told to treat the symptom and not the cause. And third thing is, what if I am basically replaced one day as a doctor? एक दिन मेरी जॉब चली जाती है एज अ डॉक्टर,
अगले दिन जो है वो कोई और बंदा वही दवाइयां नहीं लिख रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ। तो what am I bringing to the world which is unique? What is bringing me that sense of purpose? मेरे लिए personally, these are all my personal thought points. I'm not telling you guys, any medical student, to adopt my thought points. I completely respect you अगर आप कहते हो कि medical is something that you're genuinely passionate about and you genuinely have this passion to help your medical services या फिर through your career. लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो ना जो कह रहे हैं कि मैंने बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना था और मेडिकल इज माय वे टू दैट और मेडिकल इज माय व्हीकल टू दैट, यू आर अप्रोचिंग दिस द कंप्लीटली रॉन्ग वे। आप अपने करियर को हमेशा पूरी जिंदगी हेट करोगे। आपके इर्द ऐसे लोग होंगे जो आपसे हल्की डिग्रीज करके आपसे बेहतर पैसे कमा रहे होंगे और आप सोच रहे होगे कि यार व्हाट वाज ऑल ऑफ दिस फॉर। 50 लाख रुपए, 55 लाख रुपए। मेरे टाइम पे जब मैंने 2019 में एमबीबीएस स्टार्ट किया था तब मेडिकल की फीस थी पूरी डिग्री की, यानी कि 5 साल की टोटल 50-55 लाख थी। आजकल के टाइम पे अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट एमबीबीएस स्टार्ट करता है तो उसकी मेरा ख्याल है कोई 25 लाख मंथली ईयरली फी है और उसके ऊपर आप डोनेशन अलहदा ऐड करो। तो आपने ये करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है, पीछे आपको नौकरी कितने की लग रही है? 65,000। ये मुंह पे चांद नहीं है। दिस इज अ स्लैप इन द फेस। तो दिस वाज व्हाई आई पर्सनली डिसाइडेड to basically go all in on entrepreneurship. मैंने ये डिसीजन इस तरह नहीं लिया कि I had this idea in my mind to start a business कि भाई चलो मैं एमबीबीएस को छोड़ देता हूँ because I have this idea in my mind कि I'm going to build a business from scratch. No, I was already very well established in my entrepreneurship journey. I've been in the online world earning money through it for the past 3 years. इस वजह से I was qualified enough to move to an office, build an entire studio, be qualified enough to leave that profession, have it as a backup. मैंने अपनी हाउस जॉब नहीं की। मैं अपनी हाउस जॉब किसी भी टाइम कर सकता हूँ। आज के दिन जाके कर सकता हूँ, साल बाद जाके कर सकता हूँ, 1.5 साल बाद जाके कर सकता हूँ, 2 साल बाद जाके कर सकता हूँ। एंड आई हैव दैट एज माय प्लान बी। मैंने तो इस तरह अपनी लाइफ को व्यू किया है। मैं अपने बिजनेस को फर्स्ट पे रखता हूँ एंड माय प्लान बी इज मेडिसिन। तो आई हैव अ प्रीटी गुड सेफ्टी नेट, यानी कि इवन इफ माय बिजनेस कंप्लीटली कोलैप्सेस नाउजुबिल्लाह, so I have a very good plan B to fall back on. So this is how I have approached it. As for your second question, do you think copywriting is a high-paying skill? Copywriting is a very high-paying skill. Copywriting still to this day लोगों को बहुत ज्यादा required है। मैंने एक copywriter को hire किया है। Every single coach, founder, freelancer which I know has hired a copywriter to do his email marketing. A lot of you guys might probably be here because of the emails that you read. That was written by my email copywriter. उसकी वजह से मुझे एक फायदा हुआ, मेरा एक नया क्लाइंट ऐड हुआ, उस सर्विस के लिए मैंने उसे पे किया। तो दिस इज हाउ कॉपीराइटिंग इज। एंड शहजाद खान भाई जिनके साथ हमारा रिसेंटली एक सेशन हुआ था, अगर आप लोगों के वीकली सेशंस जिसके ओपन अप हुए हैं, गो अहेड एंड गो टू द क्लासरूम सेक्शन एंड वॉच दैट सेशन। उसमें आपको अंदाजा होगा कि किस तरह आप एआई के थ्रू अपने कॉपीराइटिंग करियर को फिर भी लेवरेज कर सकते हो, कैसे आप एआई को यूज करके एक इफेक्टिव कॉपीराइटर बन सकते हो। ऐसी बात नहीं है इस वक्त कि एआई कंप्लीटली रिप्लेस कर चुकी है कॉपीराइटर्स को, दैट इज नॉट द केस एट ऑल। द बेस्ट कॉपीराइटर्स इन द वर्ल्ड आर राइट नाउ लेवरेजिंग एआई इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर स्किल इवन फर्दर। समझ रहे हो बात को? उस सेशन को जरूर देखो। आप लेवल 4 के ऊपर जब कम्युनिटी के ऊपर पहुंचोगे, व्हेन यू एक्टिवली कम्युनिकेट एंड पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी, लेवल 4 पे आपके रिकॉर्डेड सेशंस अनलॉक हो जाएंगे जो हम काफला में होल्ड करते हैं। दीज आर एक्सक्लूसिव सेशंस। और भाई मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, अगर आप वो शहजाद खान का जाके सेशन देखते हो, आपका भाई दिल भर जाएगा। आप कहोगे कि यार मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन और कहीं पे भी नहीं मिली। उन्होंने ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताए हुए हैं कि भाई मैं भी बौखला गया था जेन्युइनली। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ समवन के मतलब जिसको इस तरह की चीजों का काफी पता होता है, बट मुझे भी एक काफी सरप्राइजिंग चीजें लगी थी। तो डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट सेशन। एंड एज फार एज योर थर्ड क्वेश्चन इज कंसर्न, यूएसएमएल के साथ कॉपीराइटिंग कर सकते हैं कि नहीं? भाई ऐसा है कि जो भी कर रहे हो ना आप जिंदगी के अंदर, बेशक आप सीमेंट की बोरियां बेच रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, जैनिटर हो कहीं पे, जो भी हो, आपका एक सर्टेन कंटिजेंट ऑफ टाइम बचता है। अब आप उस टाइम को किस तरह यूज करते हो? फोन के ऊपर यूज करते हो, अपने दोस्तों से बात करने पे यूज करते हो, या फिर आप उसे यूज करते हो टू बिल्ड अ साइड हसल, दैट इज कंप्लीटली ऑन यू। दैट इज नॉट ऑन मी, दैट इज नॉट ऑन एनीवन एल्स इन द कम्युनिटी, दैट इज नॉट ऑन योर पेरेंट्स, दैट इज ऑन यू। और मेरे ओपिनियन में आपको कभी भी एक साइड हासिल के बगैर आजकल के टाइम में मूव नहीं करना चाहिए।
आजकल के टाइम पे आप लोगों को मैं कहता हूं कि आपका फर्ज है कि आपकी साइड हसल हो, आपका फर्ज है कि आपकी साइड हसल हो, एंड दिस शुड बी प्रायोरिटी नंबर ए फॉर यू इन योर माइंड कि भाई मैंने अपनी 20s के अंदर एक साइड हसल रनिंग पे लेके आनी है और लुक्रेटिव करनी है। दैट शुड बी प्रायोरिटी नंबर 1 फॉर यू। आप अपने, बेशक आप स्टूडेंट हो, जॉब ओनर हो, जॉब करते हो, एग्जाम सर के ऊपर आए हुए, जो भी हो, वट एवर यूर डूइंग इन योर लाइफ, यू हैव टाइम फॉर अ साइड हसल। आपने खुद मुझे बताया कि आप यूएसएमएलई के साथ कर सकते हो या नहीं कर सकते। भाई मैंने एमबीबीएस के अंदर अपनी बहुत बहुत कॉम्पिटेंट लेवल की परफॉर्मेंस की है, और उसके साथ साथ मैंने मल्टीपल ऑनलाइन रेवेन्यू पॉजिटिव बिजनेसेस बिल्ड किए थे। मैं कहने को कह सकता था कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, एंड आई डिड फॉर 2 years ऑफ माय एमबीबीएस, बट इट ऑल चेंज फॉर मी द डे आई आस्क्ड माय सेल्फ दिस क्वेश्चन कि डू आई रियली नॉट हैव टाइम और एम आई टेलिंग माय सेल्फ आई डोंट हैव टाइम? बिकॉज इफ यू ऑनेस्टली आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, your answer is most probably going to be the latter. So all of the problems in your life are going to go away if you just start being honest with yourself. That is the secret recipe. अच्छा, बिलाल जिसने एक ऑरेंज कलर का कैरेक्टर है और ऊपर आंखें बनी हुई हैं, बिलाल क्या प्रोफाइल पिक्चर लगाई है भाई बिलाल ने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। अच्छा, माय मेन क्वेश्चन वाज दैट मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट करना है इन अबाउट 2 to 3 वीक्स का टाइम दिया है मैंने अपने आप को, क्योंकि आई हैव एन इशू वेयर आई हैव दिस वन डिजीज एंड इतना टाइम नहीं है मेरे पास, राइट? सो आई वांट टू डू समथिंग बिफोर आई पास। What disease do you have? आई हैव स्टेज 4 न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर। ओह, हाँ, अल्लाह आपको सेहत दे यार, अल्लाह आपको बहुत शिफा दे। तो मैंने पास करने से पहले इंसानियत ट्राई करें। So I was going to ask what skills should I learn to develop the business, because confidence and communication are definitely one of them. But I was thinking that there's skills such as copywriting, freelancing, and I don't know which skills are essential for me to learn and which skills should I not learn. So that was the main question that I wanted to ask. Thank you. यार कोई भी रोने का इमोजी ना डाले चैट के अंदर, सारे जो है वो भाई हाइप अप करो बिलाल को। बिलाल चीता है एक नंबर का, ये बात। बिलाल भाई है अपना और चीता है बिलाल। अच्छा बिलाल, इट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप जो है वो इस चीज के बारे में इंकरेज्ड हो और मोटिवेटेड हो, एंड एवरीवन, मैं कहता हूँ कि यूर बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो इस स्टेप को लेने के लिए उनके अंदर गट्स है ही नहीं कि वो अपने आप के ऊपर एक्टिवली काम करें। If you were to asking you what is the one skill that if I were in your place so I would learn, तो that would be मेरे ख्याल में कॉपी राइटिंग। मैंने खुद पर्सनली कॉपी राइटिंग से स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई डिड माई ओ लेवल्स एंड आई डिड माई ए लेवल्स, बट एट द सेम टाइम मेरे दोस्त ऐसे थे जो ओ ए लेवल टाइप के नहीं थे। सही है, मैंने बहुत खराब दोस्तों में टाइम गुजारा है, आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू, और इसी वजह से मैं अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूँ कि भाई अपने लूजर दोस्तों को छोड़ दो। तो मैंने ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ टाइम गुजारा है। हाँ, तो जब आप ओए लेवल्स में होते हो ना तो आपकी अंग्रेजी अच्छी होती है, यू हैव गुड इंग्लिश स्पीकिंग, और आई नोटिस विद योर एक्सेंट एंड विद द वे यू बेसिकली स्पोक दैट योर इंग्लिश इज प्रीटी गुड। आपकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी होगी, आपकी रिटन इंग्लिश भी अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट भी होगी। तो व्हेन यू हैव ऑल ऑफ दीज एसेट्स, तो द फर्स्ट थिंग व्हिच आई कैन गेट यू स्टार्टेड ऑन इज कॉपी राइटिंग। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट टू यू, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कॉपी राइटिंग सिर्फ कॉपी राइटिंग इन इटसेल्फ एक अच्छी स्किल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉपी राइटिंग इन इटसेल्फ जो है इज द बेस्ट स्किल इन द वर्ल्ड। मैं कहता हूँ कॉपी राइटिंग इज द फंडामेंटल टू एवरी अदर स्किल इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। मैंने आपको अपनी जर्नी बताई, स्टार्टेड फ्रॉम कॉपी राइटिंग, वेंट ऑनवर्ड्स टू फेसबुक एड्स मैनेजमेंट की एजेंसी, वेंट ऑन टू अ कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी, एंड देन वेंट ऑन टू पर्सनल ब्रांडिंग। नाउ वर्किंग ऑन सम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स एज वेल। मैंने कल ऑर्डर प्लेस किया अपनी फर्स्ट ई कॉमर्स, दिस इज यू गाइस नोइंग इट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बट 1 महीने बाद मैं अपना ई कॉमर्स ब्रांड भी लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कल अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस किया। तो जनरली ई कॉमर्स सॉरी कॉपी राइटिंग जो है वो बेसिकली फंडामेंटल है इन सब ऑल ऑफ दीज अदर स्किल्स का। पर्सनल ब्रांडिंग जब मैं कर रहा था और जब मैं अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहा था तो आई बेसिकली वाज स्क्रिप्टिंग माय वीडियोस बिफोर हैंड। मैं अपनी सारी वीडियोस पहले लिखता था कि भाई इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, मैंने क्या क्या पेन पॉइंट्स एड्रेस करने हैं, एंड एवरी सिंगल क्रिएटर दैट यू सी ऑनलाइन always scripts their videos. तो जब वो स्क्रिप्ट करते हैं तो they need good what? Good copywriting.
तो कॉपी राइटिंग इन इट सेल्फ भी एक स्किल है जो आप सेल कर सकते हो। कॉपी राइटिंग अगर आप स्किल एक सीख भी लेते हो, उसके बाद कल को आप और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके अंदर आप यूज कर सकते हो। और फॉर यू स्पेसिफिकली समवन हु हैज फ्लुएंट इंग्लिश एंड कम्स फ्रॉम ए ओ लेवल बैकग्राउंड, आई डोंट नो अगर आप ए ओ लेवल बैकग्राउंड से आते हो बट आपकी अंग्रेजी डिसेंट है, तो अगर आप कॉपी राइटिंग से स्टार्ट करते हो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन स्टार्ट विद। आप उस स्किल को इन इट सेल्फ भी सेल कर सकते हो और आप उस स्किल को यूज करते हुए बेसिकली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बिकॉज ऑफ माय वेबकैम। अच्छा, तो आप उस स्किल के थ्रू जो है वो आगे स्किल्स को भी लर्न कर सकते हो। और एक्चुअली मैं आपको कहूंगा कि यार बिलाल था, वाज इट बिलाल? Yes, yes. बिलाल, आपने मुझे स्कूल के ऊपर डीएम करना है, आई हैव समथिंग फॉर यू, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। Okay. मैं आपको जो है वो आई विल पर्सनली हेल्प यू फ्री ऑफ कॉस्ट, हेल्प यू लॉन्च योर फर्स्ट ऑनलाइन बिजनेस। तो बिलाल, मैसेज मी ऑन स्कूल और बाकी सब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस फर्स्ट कॉल। दैट्स गोइंग टू बी इट फॉर टुडे। हम लोग इसी तरह की कॉल्स जो, ओह शिट मेरा लैपटॉप कितनी कम चार्जिंग पे है, बीच में कॉल बंद हो जानी है, चार्जिंग पे लगाने दो फिर मैं आउटरो करता हूँ। तो एसेंशियली गाइस ऐसा सीन है कि हम लोग ये वाली कॉल 1 महीने में एक कर रहे होंगे। सॉरी, दोबारा बोलो वकील, आपकी आवाज नहीं आ रही वकील। एक सिस्टर का हैंड रेज है, उसको क्वेश्चन एड्रेस करते हैं, बाकी वॉइस है। दोबारा बोलो। मैंने कहा एक सिस्टर का हैंड रेज है, उसको क्वेश्चन एड्रेस करते हैं। अच्छा जी, एक सिस्टर का क्वेश्चन एड्रेस कर दें। अच्छा, फातिमा कुरैशी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन एंड देन विल डू द एंडिंग रिमार्क्स। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत वीडियोस बनाने की कोशिश करना शुरू की है, तो मैं आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। मैं आपकी पुरानी वीडियोस देख रही थी जिसमें आपके बैक पे कवर नज़र आती थी, तो उसमें आपने एक पैटर्न फॉलो किया हुआ है कि पहले आप जो भी वीडियो होती थी उसमें पहली लाइन जो बोलते थे तो आप अपने ग्लासेस उतार के रखते थे साइड पे। उसके बाद आपने अपना फ़ोन फेंकना शुरू किया अपनी वीडियोज़ में। तो मैं पूछना चाह रही थी कि इसका कोई इम्पैक्ट हो या आप डेलिबरेटली करते थे या कोई इसका इम्पैक्ट होता है कि जो भी वीडियोज़ बनाए वो ऐसा कोई पैटर्न फ़ॉलो करे या उसकी वजह क्या थी और मोबाइल का होता क्या था? मैं ये पूछना चाह रही। अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसको विजुअल हुक कहते हैं। विजुअल हुक एसेंशियली मींस कि आप स्क्रीन पे कोई ऐसा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी करते हैं व्हिच मेक्स द व्यूअर बेसिकली ट्यून इन एंड वॉच द रेस्ट ऑफ योर वीडियो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा माइक रखा हुआ है अपने फ्रेम के अंदर, तो पीपल माइट वॉच दैट वीडियो, माइट नॉट वॉच दैट वीडियो। बट अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये सन ग्लासेस हैं, ठीक है, और इन सन ग्लासेस को एज अ माइक होल्ड किया हुआ है, तो दैट जस्ट जनरली मेक्स मी समवन के मतलब जो थोड़ा सा जिसकी बात पे फोकस करने का दिल कर रहा है, बिकॉज ही इज डूइंग समथिंग आउट ऑफ द नॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर क्योंकि सबके अटेंशन स्पैन इतने कम होते हैं ना, तो यू एसेंशियली हैव टू डू समथिंग व्हिच मेक्स यू स्टिक आउट, व्हिच मेक्स यू यूनिक। अगर आप कुछ यूनिक करेंगे तो फिर ही आप स्टिक आउट करेंगे और तब ही लोग आपकी बैठ के वीडियोस देखेंगे। वरना अगर आप सिर्फ एक स्ट्रेट एक्सप्रेशन के साथ और एक बहुत मोनोटोन वॉइस के अंदर कोई चीज एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल वोंट लाइकली लिसन टू यू, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के अंदर इट इज जस्ट 90 सेकंड्स एंड ऑनेस्टली 90 सेकंड से भी ज्यादा मैं बोलूंगा इट इज द फर्स्ट 3 सेकंड्स व्हिच कैचेस द अटेंशन ऑफ द व्यूअर। अगर आप उस फर्स्ट 30 सेकंड्स के अंदर कैच कर लेते और फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर कैच कर लेते हैं, तो देन यू कैन मेक द व्यूअर रिटेन्ड ऑन योर वीडियो एंड यू कैन बेसिकली गेन अ फॉलो। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, नेवर मेक नार्सिसिस्टिक कंटेंट। नार्सिसिस्टिक कंटेंट एसेंशियली मींस कि यू आर मेकिंग कंटेंट ऑल अबाउट योरसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से जिम के क्रिएटर्स होते हैं जो अपनी फिजिक्स लगाते हैं, दिखाते हैं कि भाई हाँ हम हमारी ये फिजिक है और मजे के एडिट्स लगे हुए होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि दैट कंटेंट इज नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक इन द सेंस कि इट इज नॉट अबाउट द व्यूअर, इट इज अबाउट द इन्फ्लुएंसर इन क्वेश्चन। अगर आप ये करते हैं कि आप
अपने कंटेंट के अंदर वैल्यू दे रहे हैं और लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं और अपनी आइडियल ऑडियंस के क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हैं और उनको जेन्युइन वैल्यू मिल रही है, तो दे विल फॉलो यू. पीपल फॉलो फॉर वैल्यू. अगर वैल्यू नहीं दे रहे आप, तो फिर आप फॉलो नहीं गेन कर सकते. तो दैट इज समथिंग व्हिच यू रियली नीड टू वर्क ऑन, कि भाई आप, आपकी एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए, आपकी कोई ना कोई विजुअल हुक अपनी वीडियो के अंदर होनी चाहिए, स्पेशली इन द स्टार्ट. बाद में फिर जब आपके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो क्योंकि आपको बेस फॉलोइंग की वजह से व्यूअरशिप इतनी मिल रही होती है, तो योर कंटेंट इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लॉट ऑफ पीपल. तो इस वजह से मैं वो चीजें अब नहीं करता, बिकॉज आई हैव एन ऑडियंस नाउ, तो आई कैन फोकस मोर ऑन माई कोर मैसेज. But especially for someone, if any one of you guys are starting personal branding, you have to integrate visual hooks. You have to make sure कि आप first 3 seconds के अंदर अपनी ideal audience की problem को address करते हो. You talk about their problem. First, you have to ask yourself कि who is my ideal audience? What does he wear? What does she wear? What does he smell like? What does he talk like? What is his interest? वो अभी जिंदगी में क्या करता है? क्या एज है उसकी? क्या जेंडर है उसका? ये सारी चीजें अपने आप से पूछें एंड पूछें कि अपने आप से कि भाई ये डेमोग्राफिक आइडियल क्या है जिसे मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी सीक्रेट प्रोटोकॉल व्हिच आई पर्सनली यूज्ड इन माय ग्रोथ. एवरीवन, you really need to note this down because this is one of the most important lessons that you can learn today. अगर आप content creation start करना चाहते हैं and you want to grow, I'll tell you a scripting format which I personally used, जिसकी वजह से आपके सामने कि my growth was very ballistic. It's called PAS. Problem, agitate, solve. Problem. यार जिगर क्या तुम तंग आ गए हो मोटे होने से? यार जिगर क्या तुम तंग आ गए हो? यार जिगर अगर तुम फोकस करना चाहते हो तो ये वीडियो गौर से सुनना. यार जिगर अगर तुम लाइफ में कंप्लीटली लॉस्ट फील कर रहे हो तो ये बात मेरी गौर से सुनना. आगे मैंने इसी प्रॉब्लम पे एजिटेट किया. What does his life look like right now which makes him feel the problem that he's feeling? If the problem was कि अगर तुम अपनी जिंदगी के अंदर लॉस्ट फील कर रहे हो तो लिसन क्लोजली, ये मेरी हुक थी एंड दिस वाज द प्रॉब्लम व्हिच आई वाज एड्रेसिंग. एजिटेट के अंदर मैं क्या करूंगा कि तुम इस वक्त अपनी लाइफ में लॉस्ट इस वजह से फील कर रहे हो बिकॉज तुम्हारी रूटीन कंप्लीटली तबाह हुई है. तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी बने हुए और तुम्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर स्टिक करने की बिल्कुल आदत नहीं है. इस वजह से जो है वो तुम्हारे फंडामेंटल्स कंप्लीटली तबाह हो गए. दिस इज हाउ यू फिक्स इट. अब ये मैंने प्रॉब्लम एड्रेस की, ये मैंने एजिटेट किया, एंड पे जब मैंने सॉल्व करना है तो मैं किस तरह करूंगा? द वे टू फिक्स दिस प्रॉब्लम इज XYZ. एंटर माय आइडियल मेथड ऑफ फिक्सिंग the problem which I stated in the beginning of the video. So this is how you go about it. These are the simplest principles which I could explain to you. और अगर आप इस फंडामेंटल के ऊपर काम करते हैं और इन फंडामेंटल्स के ऊपर 30 डेज कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं, तब आई वुड कंसिडर यू समवन के जो अब एक्टिवली पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर इन हो गया. अगर आप एक वीडियो बना सकते हैं, तो आई एम नॉट प्राउड ऑफ यू. अगर आप 30 दिन कंसिस्टेंटली वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं, तो यू हैव ऑल ऑफ माय रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड. बिकॉज 30 डेज से क्या फायदा होता है? 30 डेज के अंदर आपकी वीडियोस जो है वो कोल्ड ऑडियंसेस को पुश होना शुरू हो जाती हैं. आपको अंदाजा हो जाता है अगर आपकी वीडियोस काम कर रही हैं कि नहीं कर रही. और ये मैं आपको बता दूं कि पर्सनल ब्रांडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट मैं वन ऑफ द मोस्ट भी नहीं कहूंगा, पर्सनल ब्रांड इज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट यू कैन ओन इन टुडेज डे एंड एज. मोस्ट वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट. बिकॉज इमेजिन कि एक बंदा है जिसकी एक ऑनलाइन फॉलोइंग मौजूद है, वो कल को एक ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करता है. वो ई कॉमर्स ब्रांड के अंदर कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल करता है विच इज रेलिवेंट टू हिज ऑडियंस. लेट्स से कि मैं आज जो है वो एक ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करता हूँ जिसके अंदर मैं ये वाले पोस्टर सेल कर रहा हूँ. तो जस्ट बिकॉज मेरी एक फॉलोइंग एग्जिस्ट करती है एंड पीपल ट्रस्ट मी एंड लोग मेरी बातें सुन के मतलब एक्चुअली फायदा उठाते हैं, तो मैं ये पोस्टर सेल कर सकता हूँ. पीपल विल बाय दिस पोस्टर फ्रॉम मी. तो ये एक ऐसी पावर है जो नॉर्मली आपको गेन करने के लिए आपको लाखों एड्स के ऊपर लगाने पड़ते हैं. बट यू कैन डू दिस ऑर्गेनिकली बाय हैविंग अ वेरी गुड ऑनलाइन ऑडियंस. बट मैं आपको एक चीज जरूर हमेशा बोलूंगा, जो भी चीज अपनी ऑडियंस को सेल कर रहे हैं, हमेशा एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि योर नंबर 1 प्रायोरिटी इज योर क्रेडिबिलिटी. नेवर डू समथिंग व्हिच कॉम्प्रोमाइजेस योर क्रेडिबिलिटी. अगर आप उस क्रेडिबिलिटी को लूज कर जाते हैं तो आप अपनी ऑडियंस को लूज कर जाते हैं. मेरे पास आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैंने पिछले 4 महीने के अंदर प्रोबेबली 10-15 डील्स को नो किया है, जो ब्रांड डील्स होती हैं. मैंने रूह अफ़ज़ा को नो किया.
मैंने इसी तरह के बहुत ज्यादा ब्रांड को नो किया, और मैं इस वजह से अभी नेम नहीं कर रहा क्योंकि आई वांट टू मेंटेन देयर प्राइवेसी, बट मैंने इतने ब्रांड्स को नो किया इवन दो दे वर ऑफरिंग मी वेरी गुड मनी. Why? Because those things didn't align with my brand. I would only sell something which aligns with my personal brand. तो आपने ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि योर क्रेडिबिलिटी इज अबव एवरीथिंग एल्स व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल ब्रांड. अगर आप अपने पर्सनल ब्रांड को देर पा करना चाहते हैं, और focus on the fundamentals, and the options are endless, the possibilities are endless, and you have all the potential in the world. Everyone can start personal branding, and everyone should. Everyone should. ये चीज मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा. So, guys, to conclude, thank you so much for joining this call. I thoroughly enjoyed it. We'll be doing more of these, inshallah. I really enjoyed the whole session. मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि बहुत से लड़कों ने अपने कैमरास ऑन किए हैं, माशाल्लाह. So it was lovely seeing you guys, and enjoy the community. We will be loading this community with a lot more resources, and as we do, and जिस तरह पहले भी बताया, we'll increase the price, but not for you guys. आप लोगों के लिए प्राइस इतनी रहेगी जितने पे आपने ज्वाइन किया. So thank you so much for joining. Take good care of yourself. Allah Hafiz.